جیسے آپ سب کو معلوم ہے، حکومت آج کل ہر دن شکست کا سامنا کر رہا ہے۔ پہلے اپوزیشن کا پارلیمان کی اتحاد کی وجہ سے نیشنل اسمبلی میں ایک بل پہ ان کا بل آؤٹ ووٹ ہوا، اور ایک جو اپوزیشن کا بل تھا وہ پاس ہوا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا متحد اپوزیشن کا کامیابی ہے وہ یہ کہ حکومت نے اپنا ہی بلایا ہوا جوائنٹ سیشن رات کے اندھیروں میں کینسل کروا کے وزیر اعظم صاحب بھاگنے پہ مجبور ہو گیا۔ تو وہ اس لیے کہ پارلیمان میں جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ متحد تھے، وہ موجود تھے، اور ہم نے جو نیب آرڈیننس کا سازش ہے، جو ای وی ایمز اور الیکشن کمیشن کو انڈرمائن کرنے کا سازش ہے، اب تک اس کو ناکام کروایا ہے، اور امید ہے کہ ہم آگے جا کے بھی ان کے ہر سازش کو ناکام کروائیں گے۔ میرا خاندان کا مولانا فضل الرحمان صاحب کا ساتھ آج کا نہیں، ہمارا بزرگوں کا بھی تعلق ہے، اور اب میرا اور مولانا اسد کا پارلیمان میں ہم ساتھ مل کے کام کرتے ہیں۔ تو آج مجھے بہت خوشی ہوا کہ ہم یہاں اسلام آباد میں ان سارے پوائنٹس پہ ریمینس اور بات کر سکے، اور جہاں ہمارا اپنا سیاست تو چلتا رہے گا، اتنا جو ہمارا ساتھ ہے اور ہمارا تعلق ہے وہ بھی ضرور رہے گا۔ اور ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کا بہت شکر گزار ہیں کہ جس طریقے سے اپوزیشن کا جو ساتھ ہے وہ اس پورے وقت میں اپنا رول ادا کرتے ہوئے انشور کیا کہ سارے سیاسی جماعتوں نے اپنا پورا قوت دکھا کے حکومت کو ناکام بنوایا، اور یہی پاکستان کے عوام ہم سے امید رکھتے ہیں۔ تو ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے شکر گزار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دراول بھٹو صاحب تشریف لائے ہیں، پہلی مرتبہ نہیں، اس سے قبل بھی تشریف لاتے رہے ہیں، اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ 2-3 نسلوں سے ہمارا آپس کا ایک تعلق ہے۔ تو آج کل پارلیمنٹ میں پوری قوم کو جس دشواری کا سامنا ہے، اپوزیشن وہاں پر ایک بڑا متحدہ اور متفقہ کردار ادا کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ عوام کے دلوں کی نمائندگی ہے۔ اس جعلی حکومت کو جو دھاندلی کے ذریعے سے آئی ہے، اس کو انتخابات میں، الیکشن میں اصلاحات کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، اور جو بھی ان کی تجاویز ہیں کسی قیمت پر بھی ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک جعلی قسم کی عددی اکثریت کا سہارا لے کر اگر وہ قانون سازی کرے گی تو ہم اس کو ایک آمرانہ عمل سے تعبیر کریں گے۔ یہ پارلیمنٹ کا عمل نہیں ہے، یہ بڑا ایک آمرانہ قسم کا اقدام ہوگا، اور اس کا پوری اپوزیشن کو بھرپور طور سے پارلیمانی روایات کا، پارلیمانی کردار کا حق ادا کرنا ہوگا۔ تو اس حوالے سے میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر اس وقت پوری اپوزیشن جو ہے وہ متفق اور متحد ہو کر
इस जाली हुकूमत के इन हथकंडों को नाकाम बना रही है, इसका मुकाबला कर रही है। एक कानून साजी में हुकूमत शिकस्त खा चुकी और फिर उसके बाद उनको भागते हुए जॉइंट सेशन मुलतवी करना पड़ा। अब पता नहीं इस दौरान में वो क्या गुल खिलाएंगे, कहाँ कहाँ से कोई ख़रीदारी करेंगे, इधर उधर से कोई हाथ पाँव मारेंगे, और अगर दोबारा भी इजलास बुलाएंगे तो इसी वहदत का, इसी इत्तेफाक राय का मुजाहरा करके ही इंशाअल्लाह उनको शिकस्त दी जाएगी और उनको पसपाई पे मजबूर किया जाएगा। मौलाना साहब ये बताएं कि आप पार्लियामेंट में, मौलाना साहब इस शिकस्त के बाद आप पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म तब्दील होगा या आम इंतखाबात होंगे? बिलावल साहब से भी यही सवाल है। देखिए, हमारा जो असल डिमांड है अव्वल दिन से, वो तो बहरहाल फ्रेश इलेक्शन का है और आम इंतखाबात मुल्क में हमें चाहिए, क्योंकि हमने जुलाई 2018 में जो मुत्तफ़क़ा एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो बड़ा वाज़ेह है, आज भी वाज़ेह है, उस वक्त भी वाज़ेह था कि हम जाली अक्सरियत को तस्लीम नहीं करते और कौम को वोट का हक़ वापस मिलना चाहिए। ये चोरी हुआ मैंडेट, इस पर कोई हुकूमत करे तो हमें काबिल। मौलाना साहब ये बताएं कि क्या अब इत्तेफाक हो रहा है, करीब आ रहे हैं आप लोग, इससे पहले चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के वक्त, अदब एतमाद के वक्त जो चीज़ें सामने आई, जिस तरह पीडीएम टूटी, अब तो आपको क्लियर वाज़ेह मेजॉरिटी हासिल है। क्या पीपल्स पार्टी ने यकीन दिला दिया है कि अब हम जो पिछला हुआ था वो अपनी जगह, लेकिन अब तहरीक अदब एतमाद ला रहे हैं चेयरमैन सेनेट? देखिए, मैं गुजारिश करूँ आपसे, आज जो मुलाकात हुई है, बिलावल साहब तशरीफ़ लाए हैं, तो सारे जुज़ियात पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। एक खैर सगाली का मुज़ाहरा है, एक अच्छा ताल्लुक़ और उस अच्छे ताल्लुक़ का एक इजहार है, तो इस हवाले से कोई भी बात होगी तो शायद आने वाले मुस्तक़बिल में हो। ये बताइएगा कि जो वहादत पार्लियामेंट के अंदर नजर आई है, क्या वो वहादत पार्लियामेंट के बाहर इत्तेहाद नजर आएगा? और कल आप एक बड़ी रैली की क़यादत कर रहे हैं कराची में महंगाई के खिलाफ, तो दावत दी आपने? और क्या, देखिए, मैं गुजारिश करूँ आपसे, ये सब चीज़ें हर चंद मैं पीडीएम का सदर हूँ, लेकिन मैं तनहा कोई फैसला नहीं किया करता, तो ये सारी चीज़ें जो आप पूछ रहे हैं या कर रहे हैं, जब ऐसी बातें होंगी तो बाहर मुशावरत से ही मौलाना ये बताइए बात कही जा सकेगी। आप मुतमईन रहें, अभी वो मेरे मेहमान हैं और मेहमान होने का तकाजा ये है कि कोई ऐसी बात न छेड़ी जाए कि जिसमें हमारे रिवायात में कोई फ़र्क आ सके। बिलावल साहब ये बताइए है कि पीडीएम में वापसी का कोई इम्कान है या पार्लियामेंट से बाहर मिलके जद्दोजहद में साथ देंगे, पीडीएम से हट के भी? इस मौजू पे कोई बात नहीं हुआ। जैसे मौलाना साहब ने कहा, जिन पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किया, उन्हीं पॉइंट्स पे हमने अंदर भी बात किया और इसी पे हम आज कायम हैं। और हम सबको इस बात को वेलकम करना चाहिए कि पार्लियामान का फतह हुआ है। पार्लियामान में मुत्तहिद अपोजिशन ने जमहूरियत और यूजिंग डेमोक्रेटिक मीन्स हमने हुकूमत को नुकसान पहुंचाया है, और ये हमेशा हमारा मौक़िफ़ रहा है कि जमहूरी अंदाज से काम लिया जाए और कामयाबी हासिल हो सके। रात के अंधेरों में कैंसिल करवा के वज़ीर आज़म साहब भागने पे मजबूर हो गया, तो वो इसलिए कि पार्लियामान में जितने भी सियासी जमातें हैं वो मुत्तहिद थे, वो मौजूद थे, और हमने जो नैब ऑर्डिनेंस का साजिश है, जो EVMs और इलेक्शन कमीशन को अंडरमाइन करने का साजिश है, अब तक उसको नाकाम करवाया है, और उम्मीद है कि हम आगे जाके भी उनके हर साजिश को नाकाम करवाएंगे। मेरा ख़ानदान का मौलाना फजल रहमान साहब का साथ आज का नहीं, हमारा बुज़ुर्गों का भी ताल्लुक़ है, और अब मेरा और मौलाना
असद का पार्लियामान में हम साथ मिलके काम करते हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी हुआ कि हम यहाँ इस्लामाबाद में इन सारे पॉइंट्स पे रेमिनिस और बात कर सके और पूरे वक्त में अपना रोल अदा करते हुए इंश्योर किया कि सारे सियासी जमातों ने अपना पूरा कुव्वत दिखा के हुकूमत को नाकाम बनवाया और यही पाकिस्तान के अवाम हमसे उम्मीद रखते हैं। तो हम आप सब के शुक्रगुजार हैं और मौलाना फजल रहमान साहब के शुक्रगुजार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दारावल भुट्टो साहब तशरीफ़ लाए हैं, पहली मरतबा नहीं, इससे कबल भी तशरीफ़ लाते रहे हैं और जैसे कि उन्होंने बताया कि 2-3 नस्लों से हमारा आपस का एक ताल्लुक़ है। तो आजकल पार्लियामेंट में पूरी कौम को जिस दुश्वारी का सामना है, अपोजिशन वहाँ पर एक बड़ा मुत्तहिदा और मुत्तफ़क़ा किरदार अदा कर रही है और मैं समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत है, ये आवाम के दिलों की नुमाइंदगी है। इस जाली हुकूमत को जो धांधली के ज़रिए से आई है, तो हम इसको एक आमिराना अमल से ताबीर करेंगे। ये पार्लियामेंट का अमल नहीं है, ये बड़ा एक आमिराना किस्म का इक़दाम होगा और इसका पूरी अपोजिशन को भरपूर तौर से पार्लिमानी रवायात का, पार्लिमानी किरदार का हक़ अदा करना होगा। तो इस हवाले से मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त पूरी अपोजिशन जो है वो मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद होकर इस जाली हुकूमत के इन हथकंडों को नाकाम बना रही है, इसका मुकाबला कर रही है। एक कानून साजी में हुकूमत शिकस्त खा चुकी और फिर उसके बाद उनको भागते हुए जॉइंट सेशन मुलतवी करना पड़ा। अब पता नहीं इस दौरान में वो क्या गुल खिलाएंगे, कहाँ कहाँ से कोई ख़रीदारी करेंगे, इधर उधर से कोई हाथ पाँव मारेंगे और अगर दोबारा भी इजलास बुलाएंगे तो इसी वहदत का, इसी इत्तेफाक राय का मुज़ाहरा करके ही इंशाअल्लाह उनको शिकस्त दी जाएगी और उनको पसपाई पे मजबूर किया जाएगा। मौलाना साहब ये बताएं कि आप पार्लियामेंट में, मौलाना साहब इस शिकस्त के बाद आप पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म तब्दील होगा या आम इंतखाबात होंगे? बिलावल साहब से भी यही सवाल है। देखिए, हमारा जो असल डिमांड है अव्वल दिन से वो तो बहरहाल फ्रेश इलेक्शन का है और आम इंतखाबात मुल्क में हमें चाहिए, क्योंकि हमने जुलाई 2018 में जो मुत्तफ़क़ा एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो बड़ा वाज़ेह है, आज भी वाज़ेह है, उस वक्त भी वाज़ेह था कि हम जाली अक्सरियत को तस्लीम नहीं करते और कौम को वोट का हक़ वापस मिलना चाहिए। ये चोरी हुआ मैंडेट, इस पर कोई हुकूमत करे तो हमें काबिल। मौलाना साहब ये बताएं कि क्या अब इत्तेफाक हो रहा है, करीब करीब आ रहे हैं आप लोग, इससे पहले चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के वक्त, अदब एतमाद के वक्त जो चीज़ें सामने आई, जिस तरह पीडीएम टूटी, अब तो आपको क्लियर वाज़ेह मेजॉरिटी हासिल है। क्या पीपल्स पार्टी ने यकीन दिला दिया है कि अब हम जो पिछला हुआ था वो अपनी जगह, लेकिन अब तहरीक अदब एतमाद ला रहे हैं चेयरमैन सेनेट? देखिए, मैं गुजारिश करूँ आपसे, आज जो मुलाकात हुई है, बराबर साहब तशरीफ़ लाए हैं, तो सारे जुज़ियात पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। एक खैर सगाली का मुज़ाहरा है, एक अच्छा ताल्लुक़ और उस अच्छे ताल्लुक़ का एक इजहार है। तो इस हवाले से कोई भी बात होगी तो शायद आने वाले मुस्तक़बिल में हो। ये बताइएगा कि जो वहदत पार्लियामेंट के अंदर नजर आई है, क्या वो वहदत पार्लियामेंट के बाहर इत्तेहाद नजर आएगा? और कल आप एक बड़ी रैली की क़यादत कर रहे हैं कराची में महंगाई के खिलाफ, तो दावत दी आपने? और क्या, देखिए, मैं गुजारिश करूँ आपसे, ये सब चीज़ें हर चंद मैं PDM का सदर हूँ
لیکن میں تنہا کوئی فیصلہ نہیں کیا کرتا. تو یہ ساری چیزیں جو آپ پوچھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں، جب ایسی باتیں ہوں گی تو باہمی مشاورت سے ہی مولانا یہ بتائیں بات کہی جا سکے گی. ضرورت کس بات کی ہے باہر احتجاج کرنے کی ہے یا پارلیمنٹ میں تبلیغ کی؟ ضرورت کس بات کی؟ آپ مطمئن رہیں، ابھی وہ میرے مہمان ہیں، اور مہمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہ چھیڑی جائے کہ جس میں ہمارے روایات میں کوئی فرق آ سکے. بلاول صاحب یہ بتائیے کہ پی ڈی اے میں واپسی کا کوئی امکان ہے یا پارلیمنٹ سے باہر مل کے جدوجہد میں ساتھ دیں گے، پی ڈی اے سے ہٹ کے بھی؟ اس موضوع پہ کوئی بات نہیں ہوا. جیسے مولانا صاحب نے کہا، جن پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا انہی پوائنٹس پہ ہم نے اندر بھی بات کیا، اور اسی پہ ہم آج قائم ہیں. اور ہم سب کو اس بات کو ویلکم کرنا چاہیے کہ پارلیمان کا فتح ہوا ہے. پارلیمان میں متحد اپوزیشن نے جمہوریت اور یوزنگ ڈیموکریٹک مینز ہم نے حکومت کو نقصان پہنچایا ہے، اور یہ ہمیشہ ہمارا موقف رہا ہے کہ جمہوری انداز سے کام لیا جائے اور کامیابی حاصل. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.